Hello dear students of class 11th. Once again I welcome you all in this online digital classes. As we all know, we are doing chapter number 15, which is statistics, and today we are here to start new exercise, that is exercise 15.2, and in this we are going to study the topic variance and standard deviation. In the previous exercise we studied mean deviation about mean and mean deviation about median, but in this exercise we are going to study variance and standard deviation. As you all know, the data used to be of two types, ungrouped and grouped. Again, grouped is classified into two types, discrete and continuous. So based upon that, questions are there. Let us start the very first question. The very first question you have to find out mean and variance, okay? And the data is ungrouped data. ठीक है? तो जो values आपको given है वो है 6, 7, 10, 12. 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12. ये आपके पास डाटा आपको गिवन है. 8 numbers are given to you. See if you have to find out the mean और वेरियंस. पहले आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, अपने गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, अरेंज कर लीजिए. सो यू कैन राइट आउट डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर इज फोर से स्टार्ट हो रहा है. 4, 6, 7, 8, 10, 12 is coming 2 times and 13. So 4 and 4, 8 numbers are there. Okay. So mean क्या होता है students? You already know. Mean is sum of all observations upon total number of observations. ठीक है ना? So that is summation of क्या होता है? Summation of xi upon n small n. ठीक है? Total number of observations. So 4 plus 6 plus 7 plus 8 plus 10 plus 12 plus 12 plus 13 upon 8. See 10, then it's 25, 35, 35, 47, 47, and then 50, 60, 72 upon 8. That is 9. That is 9. So आपका मीन कितना है? 9. ठीक है ना? And after that we have to find out the variance. ठीक है? variance का क्या फॉर्मूला है? So all the formulas are given on one page, that is on the summary page, page number 381. ठीक है? variance and standard deviation for ungrouped data. तो वो क्या है? देखिए, variance is sigma square. Since variance क्या होता है? sigma square, और standard deviation को डिनोट करते हैं sigma से. ठीक है? तो sigma square का फॉर्मूला है 1 upon n summation of xi minus x bar का स्क्वायर. ठीक है? समीशन ऑफ xi minus x bar का होल स्क्वायर. सो देखिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन का क्या फॉर्मूला था? xi minus x bar अपॉन n. समीशन ऑफ xi minus x bar अपॉन n. लेकिन यहाँ पे क्या है? समीशन ऑफ xi minus x bar का स्क्वायर अपॉन n. ठीक है? मतलब आपने ये जो xi की वैल्यू से, इसमें से आप लोगों ने इस मीन को x bar को माइनस करना है. xi minus x bar तो क्या हो जाएगा? 4 minus 9 minus 5. लेकिन -5 का सम नहीं करना है, उसके स्क्वायर का सम करना है. ठीक है ना? सो -5 का स्क्वायर 25 प्लस देन 6 minus 9 3. ठीक है ना? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 minus 9 minus 2 का स्क्वायर 4. देन 8 minus 9 minus 1 का स्क्वायर 1. देन 10 minus 9 1 अगेन 1 प्लस 12 minus 9 3 का स्क्वायर 9. Then again 12 minus 9 3 का स्क्वायर 9, and then 13 minus 9 is 4 का स्क्वायर है 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 upon n is total number of observations. इन सबको ऐड कर दीजिए. 9 and 9 18. Okay, 18 plus 6 24 25 26 30 30 39 44. So 4 plus 1 5 5 6 7. So it's 74 upon 8. Yeah, it's 74 upon 8. That is 9.25. 9.25. This is your answer of mean and variance. Mean is 9 and variance is 9.25. ठीक है? In this way you can find out the mean and variance of the ungrouped data. Now we are going to start for grouped data. Okay.
So you no need to do question number 2 and 3 in your fair notebook, ठीक है। फेयर नोट में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4। So it is discrete data, okay? Two questions are there, question number 4 and 5. I'm going for question number 4. ठीक है, आपको क्या गिवन है? xi, after that fi, ठीक है। So xi is 6, 10, 14, 6, 10, 14, 18, 22, 26. After 20, sorry, it's after 18, it's 24, 28 and 30. These are the values. And fi is 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3. Okay, let us cross check the values. 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30 and 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3. Okay, so this is the values. Again you have to find the mean and variance, ठीक है। पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन का क्या फॉर्मूला है? x bar is equals to summation of fi xi upon summation fi, ठीक है। तो fi का पहले आप सम कर लीजिए। फ्रेंड्स अगेन आई एम सेइंग प्रॉपर लाइंस बनाना, ठीक है, अच्छे से टेबुलर फॉर्म में शो करना। सो ऐड कर लीजिए 2 + 4 6, 6 + 7 13, 13, 15, 15 और 25, 25, 33, 33, 37, 40 एंड fi xi। अब नेक्स्ट कॉलम क्या चाहिए? fi xi का सम चाहिए, तो पहले fi xi निकाल लीजिए। 12, 14, 14 into 7 gives you 98, then 18 into 12, 180 plus 36, that is 216, है ना। 18 into 12 gives you 216 and then 24 into 8 gives you 192, then 28 into 4, that's 112 and 30 into 3 gives you 900। अब इसको सम कर लीजिए। So 2 + 8 10, 10, 20, 2, 3, 3 + 4 7, 7 and 9 16, 16, 25, 26, 27, then 2 again, 2 + 2 4, 5, 6, 6 and 9 15. So it's 1570 upon 40. 0 0 eliminated. क्या जाएगा आपके पास? मीन देखिए 4 3 is 12, so 3 and it's after that 37. 37 comes 9.25. This your mean comes 39.25. In question number 4, I think it's a little bit wrong. Let's check once again. 12, 40, 40 into 7, 98. Oh, I'm so sorry. It's not 900. It's 90. It's 90. गड़बड़ हो गया। 30 into 3 gives you 90. Okay. So 4, 10, 20, 20, 2, 3, 7, 7 plus 9, 16, 16, 25, 26, 27, 27 and 9. 36, 3, 4, 5, 6, 7. So it's 760. It's 760
upon 40. So it's 4 1s are 4 and 36 9. ठीक है, so it's 19. मीन कितना आ गया आपके पास 19. ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है वेरिएंस. वेरिएंस का आपके पास क्या फॉर्मूला है डिस्क्रीट डाटा के लिए. वेरिएंस इज वन अपॉन एन कैपिटल एन इज समीशन ऑफ एफ आई. ओके, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर. ओके, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर. तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल लीजिए चाहे डायरेक्टली. ठीक है, एक्स आई में से एक्स बार को माइनस कीजिए. 6 माइनस 19, 6 माइनस 19 गिव्स यू 13 और 13 का स्क्वायर 169. 10 माइनस 19, 9 9 का स्क्वायर 81. ठीक है, माइनस 9 का स्क्वायर 81. 14 माइनस 9 5 5 का स्क्वायर 25. 18 माइनस 1 का स्क्वायर 1. 24 माइनस 19 5 और 5 का स्क्वायर 25. 28 माइनस 19 गिव्स यू 9. 9 का स्क्वायर 81 एंड 30 माइनस 19 11. 11 का स्क्वायर 121. ठीक है, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय एफ आई. एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर. एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि उसका सम चाहिए. सम तभी करेंगे जब उसका कॉलम होगा. तो ये रहा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का कॉलम और इसका एफ आई से क्या करना है आप लोगों ने मल्टीप्लाई. 2 इंटू 169 गिव्स यू टू जस्ट मल्टीप्लाई. सी 170 में 340, so it's 338. Okay, 169 into 2 gives you 338. So it's 4. 8 into 4 gives you 32. 25 into 7. See, 25 into 6 gives you 150. So 175. Then 12 into 1 gives you 12. 8 into 25. 200. 81 into 4. Again it's same. That is 324. Then 3 ones are 3, 6 and it's 3. ठीक है ना, इसका आप क्या कर लीजिए सम ऑफ. सी 7 8 9. ठीक है, 9 9 प्लस 5 14. 14 प्लस 4 18. 18 प्लस 8 26. क्रॉस चेक कर लीजिए. 8 प्लस 4 12. 12 प्लस 5 17. 19 19. Then it's 23 26. Okay, 2 5 7 14 15 17 17 और 6 23. Again 2 5 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17. So it's 1736 upon 40. Summation of f i n कितना है 40. 4 से डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट लगा दीजिएगा. ठीक है, सो 4 से 16 बचा 13. ठीक है, आप चाहें तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. 4 4 से 16 बचा रिमाइंडर 1 13. 3 ज़ा 12 देन 16 कितना 4 ज़ा. सो इट्स 43.4. ये हो जाएगा आपका वेरियस स्केल 43.4. ओके, या 43.4 इज योर वेरियंस. ओके, and since in question number 6C you have to find out using shortcut method. shortcut method जैसे आप मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से निकालते हैं FI/UI. ठीक है सिंस, लेकिन अगर आप समरी में ध्यान से देखिए शॉर्टकट मेथड में जो मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला वहाँ पे UI की जगह YI से डिनोट किया गया. ठीक है, जैसे FI/UI निकालते हैं बस FI/YI निकाल दीजिए, UI को YI से डिनोट कीजिए बस. ठीक है, इतना चेंज करना. नीचे जो आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 8 9 एंड 10, इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये कॉन्टिन्यूस डाटा की वजह. ठीक है, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा का. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 9.
ज़्यादा वैल्यूज हैं, थोड़ी बिगर वैल्यूज है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 दैट मे बी लुकिंग डिफिकल्ट फॉर यू. It's clearly mentioned you have to find out using shortcut method. ठीक है. And so shortcut method is not that it's shorter, but it's less time consuming and calculations are little bit easier. That's why it is known as shortcut method. So height in centimeters, that is CI. It's question number 9. Class interval and then frequency. कैसे given है 70 to 75. 75 to 80, 80 to 85, 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105. कहाँ तक given है 115. So 105 to 110, 110 to 115. ठीक है. After that it's FI 3, 4, 7, 7, 15, 9, 6, 6 and in the last it's 3. ठीक है. मैंने जैसे पहले ही बताया कि you have to find out mean, variance and standard deviation in this question, and mean using shortcut method is standard deviation method that you studied in your 10th standard. So next is XI. It's not this method, ये अलग है. So XI 70 और 75 की मिड वैल्यू कितने हो जाएगी 72.5. इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो जाएगा 145. 145 अपॉन 2 इज 72.5. इसे 77.5, 82.5, 87.5 and 92.5, 97.5, 102.5, 107.5 and 102.5. उसके बाद XI की मिड वैल्यू को क्या हो जाएगी A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 वैल्यूज हैं तो फिफ्थ हो जाएगी 4 नीचे, 4 ऊपर, ये हो जाएगी आपकी A वैल्यू. ठीक है ना. फिर नेक्स्ट आप निकालेंगे YI XI माइनस A अपॉन H. ठीक है. ये मीन शॉर्टकट मेथड से क्या है x बार इज इक्वल्स टू A प्लस summation of Fi yi upon summation Fi into H. Just replace ui by yi. Xi minus A 72.5 minus 92.5 कितना? It's minus 20. ठीक है. 72.5 minus 92.5 gives you minus 20 upon H. H is class difference 5. Minus 20 upon 5 gives you minus 4. So it's minus 3, minus 2, minus 1, 0. 1, 2 and 3 and 4. अब आ जाएगा Fi yi. Fi yi. आगे और कॉलम्स भी बनेंगे. Fi yi minus 12, again minus 12, minus 14, minus 7, 15, 0, 0, 9 into 1, 9, 6 into 2 gives you 12, 6 into 3 gives you 18, and 3 into 4 gives you 12. ठीक है. सो Fi y का समीशन कर दीजिए बा. नेगेटिव वैल्यूज को एक साथ सम कीजिए, पॉजिटिव वैल्यूज को एक साथ. ठीक है. तो देखिए अगर आप ऐसे भी नहीं करना है तो -12 + 12 एलिमिनेटेड, -12 + 12 एलिमिनेटेड. उसके बाद क्या बचा सिर्फ -14 और -7. ठीक है. आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं. -14 -7 कितना -21 और 18 और 9 कितना 27. या ऑफ कोर्स. ठीक है. इट्स 27. सो 27 - 21 गिव्स यू +6. ठीक है. सो A 92.5 प्लस समीशन Fi y is 6 अपॉन समीशन Fi into H. H कितना है 5. समीशन ऑफ Fi प्लस कर लीजिए. 3 + 4 7, 7 + 7 14, 21, it's 30, 45, 51,
51, 51, and then 57 and 60. So that goes 10 and 2. So that is मीन आपको इतना आ रहा है 92.5 C plus 1/2. ठीक है ना, 1/2 मीन्स 0.5, 1/2 is 0.5, so that is 93. कितना आ जाएगा आपके पास मीन? 93 for question number 9. Yes. Nextly we have to find out is variance. Okay. Next thing हमें क्या find करना है? variance. Friends, variance सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं और सिग्मा स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला है, you can see on page number 381 shortcut method, h square upon n square bracket n summation fi yi square minus bracket summation fi yi का होल स्क्वायर. ठीक है, ये है आपके पास फॉर्मूला. सो एक तो आपको चाहिए समीशन fi yi, वो तो आपका आ चुका है, ये है आपका समीशन fi yi. ठीक है, इसका स्क्वायर फाइंड करना तो आ जाएगा आराम से 36. नेक्स्ट आपको चाहिए fi yi स्क्वायर. क्या चाहिए? fi yi स्क्वायर का समीशन निकालना है, तो fi yi स्क्वायर निकाल लीजिए. सर देखिए fi yi स्क्वायर का मतलब क्या है? fi yi इंटू yi. fi yi स्क्वायर कैसे आएगा? fi yi इंटू yi, yi स्क्वायर और fi, तो मतलब fi yi वाले कॉलम को yi से मल्टीप्लाई कर लीजिए. -14 इंटू -12 पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी. 14 इंटू 12 गिव्स यू 48, 3 इंटू 12 गिव्स यू 36, इट्स 28, इट्स 7, 0, 9, 24, 3 into 18 gives you 54, and again 4 into 12 gives you 48. इसको क्या कर लीजिए अब सम अप, ये जाएगा आपके पास समीशन fi yi का स्क्वायर. ठीक है, see 8 and 8 16, 22, 22, after that 29, 29, it's 38, 38, 42, 42, 50, 54, 5, 5 plus 4 9, 9 and 3 12, 14, 16, 20, 25. एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स. 4 plus 4 8, 8 and 8 16, 16 plus 9 25, 25 it's 32, 40, 48 and 54, correct? 5, 10, 14, 16, 18, 21, 25, it's correct, 254. So h का स्क्वायर, h कितना है? डिफरेंस 5, so 5 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर. n कितना है? समीशन f5, so 60 का स्क्वायर इंटू n इंटू n कितना है? 60 इंटू समीशन fi y स्क्वायर, दैट इज 254 माइनस समीशन fi y का स्क्वायर. समीशन fi y कितना है? 6, so 6 का स्क्वायर, इट्स 25 अपॉन 3600. 3600 कैसे लिख लेते हैं? 36 इंटू 100, क्योंकि 4 एलिमिनेट हो जाएगा 4 से. इसे सॉल्व कर लीजिए. 60 इंटू 254, 60 इंटू 254 गिव्स यू 15240, 15240 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 1/36 इंटू 4 गिव्स यू इंटू, दैट इज 15204. ठीक है, 6 से एलिमिनेट होता है क्या? देखिए 6 2 is 12, then 32 gives you 5 is 30, then 20, of course 36 6 is, so 6 is 36, so 6 2 is 12, बचा रिमाइंडर 3, 32, 5 is 30, बचा रिमाइंडर 2, 20, 3 is 18, बचा 2, 24 कितने जा? 4 जा. ठीक है, फिर मेरे ख्याल से 6 से हो सकता है ये, देखिए जरा.
6 4 से 24, नो, तो 2 से एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर 3 से देखें अगर 24, नो, इंटू 3, 2 से एलिमिनेट कर लीजिए, 1 2 इट्स 6 and it's 7, ठीक है। 1 2 6 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 6 7 अपॉन 3 इंटू 4 गिव्स यू 12, ठीक है। सो 1 2 6 7 डिवाइडेड बाय 12, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 105.58, 105.58। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन के लिए 105.5, ठीक है। पीछे 5 टू आंसर गिवन है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। यहाँ पीछे पॉइंट एक के बाद एक वैल्यू डेसिमल पॉइंट निकाल लो या फिर 2 डेसिमल पॉइंट निकाल दो, नो प्रॉब्लम। 105.58 इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चलेगी स्टैटिस्टिक्स में। सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा, ठीक है ना। अभी पीछे हमने किया था अनग्रुप, फिर ग्रुप में डिस्क्रीट, और दिस इज कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा, ठीक है। इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 15.3 हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द एचपी बोर्ड, ठीक है। दैट वाज बेस्ड अपॉन एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसमें एनालिसिस करते हैं हम लोग, दो ग्रुप डाटा गिवन होता है, ग्रुप ए ग्रुप बी, उसके बीच में वेरिएंस निकाल के कौन सा ज़्यादा कॉन्टिन्यूस है, कौन सा ज़्यादा आपका क्या है वेरिएंस कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट है, वो चीज़ फाइंड करना होता है। वो आपके अच्छी बोर्ड में इस साल के लिए क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। सो विद दिस आवर चैप्टर इज 15 चैप्टर इज ओवर। यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 15.1 and 15.3 in your fair notebooks, and in the next video we'll be starting next chapter of your course. So till then, thank you, take care and have a nice day.